Hello bachcho, hello everyone. I'm Preeti Randa and welcome you to our channel which is Prakash Academy. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. अच्छा, अब आपका ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका होगा मोस्टली स्कूल में, है ना? तो मैं बहुत कुछ आपसे पूछने वाली हूँ. जस्ट टेल मी, क्या मैटर जितना ये यूनिवर्स है सारे पार्टिकल्स को हम लोग मैटर कहेंगे? जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, क्या हम उन सब को मैटर कह सकते हैं? आपके पास सपोज टाइम है, क्या टाइम मैटर है? क्या फीलिंग्स जो होती हैं हमारी वो मैटर है? ग्रेविटी जो है, जो हमको पुल करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो क्या मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है. तो फिर क्या चीज है मैटर? मैटर वो सारी चीजें हैं जो कि आपकी ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस एंड हैज मास. वो ही चीजों को हम मैटर कहते हैं. कौन सी चीजें? जो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस एंड हैज मास. अच्छा, अब बताना व्हाट इज मास? मास क्या है? दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग, है ना? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग, दैट इज मास ओनली. यस, तो मास भी पता चल गया. मास को हम मेजर करते हैं केजी में. अच्छा, तो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी फिर मैटर की? कि मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज मास. फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, it occupies space because it has mass, so it will occupy some space. It will have inertia also. Inertia means if a body is at rest, it will remain at rest until and unless some external force is applied on it. Or if a body is in motion, it will remain in motion unless and until some external force is applied on it. So matter has inertia also. Matter is affected by gravity. If you throw something, a stone or any object upward, it will come back to earth. So it is affected by gravity. Matter cannot be destroyed. If you have something, then matter that cannot be destroyed, you cannot fully destroy. It will get converted into something else. And this is what our law of conservation of mass also says. So first we have done what all are the properties of matter. Matter is made up of particles, has mass, important point. It occupies space, it has inertia, it is affected by gravity and it cannot be destroyed. Now how we can prove that it cannot be destroyed? According to law of conservation of mass. Now what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed. That mass can neither be created and nor be destroyed in any chemical reaction. कोई chemical reaction हो जाए, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सब्सटेंस चेंज हो जाता है, दैट्स इट, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. कैसे? एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड. What is sodium chloride? NaCl, your salt, the common salt that we eat regularly, and silver nitrate. अगर हमने सपोज ये दो चीज़ें ले ली, इनका सॉल्यूशन लिया सेपरेट टेस्ट ट्यूब में, फिर हमने कोनिकल फ्लास्क में इन दोनों को डाला, जिसको हमने कवर कर दिया बैलून से, तो मास जितना पहले था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा. There will be no change. ऐसा, ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ. आप कुछ भी ले लोगे, कोई भी सब्सटेंसेस, तो भी वो मास रहेगा. आप पेपर है, पेपर को आप जला देते हो, दैट इज अनदर केमिकल रिएक्शन, है ना? What will be formed? Ashes. You will mass, you will weigh the ashes, the mass will be same as that of your original one, paper. Correct? Okay.
Now, can you show that air has mass? Yes, we can show that also. What we'll do? We'll take two balloons, inflate them, tie to the ends of a stick. Tie to the ends of a stick. Achha. Like this. Suppose this is the stick. यहाँ पे भी एक बैलून है एंड यहाँ पे भी एक बैलून है. अब क्या होगा? अब हमने क्या करा, एक बैलून को हमने डिफ्लेट कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस विल बी हेवियर. अगर इसको डिफ्लेट कर दिया तो ये तो फुस हो गया. सो ये वाला साइड अभी भी मास होगा. इट विल टिल्ट. ऐसे हो जाएगा हल्का सा. Will slightly go up like this. This will be your new position. So this shows that air also has mass. Now we'll come on to, we are just abhi what we are doing? We are talking about matter. Now अगर हमें स्टडी करना है मैटर का तो हम उसकी कुछ कैसे स्टडी कर सकते हैं? उसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हमें कुछ तो बताओ तो हम डिस्क्राइब करेंगे उसको मैटर को कि वो कैसा है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, कलर हो गया, उसका क्या कलर है, स्मेल कैसी है, डेंसिटी. डू यू नो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. दिस इज डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम. सो डेंसिटी भी हम पता लगा सकते हैं. उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं उसका किसी भी मैटर का कि फिजिकल नेचर कैसा होगा. अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पता है तो हम बता सकते हैं केमिकल नेचर क्या होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है कि नहीं करती है, वाटर के साथ उसकी क्या रिएक्टिविटी है, हम ऐसी चीजें भी बता सकते हैं. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से हम बता सकते हैं कि मैटर कैसा है, उसका किस टाइप का नेचर है. अच्छा, इन जनरल हम बोलते हैं कि मैटर का पार्टिकल नेचर और मॉलिक्यूलर नेचर, इन दो नेचर की हम बात करते हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूलर नेचर. अच्छा जी, अब पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर? दैट मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स. टाइनी, वेरी स्मॉल, डिस्क्रीट, अलग अलग पार्टिकल्स. सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स, also known as particle nature of matter. This only is known as the particle nature of matter. अब ये पता कैसे चला कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर? कोई एविडेंसेस, कुछ तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. कई कह रहे थे कि ये कंटिन्यूस है, इट इज नॉट पार्टिकल. कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे नहीं, पार्टिकुलेट नेचर है इसका मैटर का. तो अब एविडेंसेस, जब बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए तो एविडेंसेस मिले कि नहीं, पार्टिकल नेचर है. अब जैसे एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग टाइप के, कुछ डिफ्यूजन. अब आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स वी नो दे मूव फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन होता है. तो क्या, जैसे आपने परफ्यूम की बॉटल घर में खोली, एक रूम में ओपन कर दी, तो वो परफ्यूम की खुशबू जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. दिस इज डिफ्यूजन. बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन क्या हो रहा है? अभी बॉटल में कंस्ट्रेंट थी परफ्यूम, आपने जैसे ही ओपन करी तो परफ्यूम के पार्टिकल सारे रूम में फैल गए, तो सब जगह वो खुशबू फैल गई उसकी. तो अभी बॉटल में हायर कंसंट्रेशन थे, परफ्यूम के पार्टिकल्स थे. अब जैसे ही ओपन करी तो वो लोअर कंसंट्रेशन, आपका रूम हो गया लोअर कंसंट्रेशन, वहां सब जगह स्प्रेड कर गए. सो दिस इज डिफ्यूजन. ये आपके एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला हमें कि पार्टिकल नेचर है मैटर का. अच्छा, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन?
ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन होता है जिगजैग मूवमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि पार्टिकल्स जो है वो ऐसे कुछ तो जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। इस जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया। ओके, अब ये जो जिगजैग मूवमेंट थी ये देखा कहाँ? ये जैसे उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को अगर हम पानी में डालें और उसको माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो उनको पॉलन ग्रेन्स का जो है ऐसे जिगजैग मूवमेंट दिखता है पॉलन ग्रेन्स का। सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट ऑल्सो इज देयर। ओके ओके, देन वी नो gases they can be compressed। पिस्टन लिया, पिस्टन के अंदर कोई गैस डालिए और कंप्रेस करो, कंप्रेस किया तो गैसेस दे कैन बी कंप्रेस्ड। क्योंकि एम्प्टी अगर हम रखेंगे तो भी अंदर कोई तो गैस है ना, एयर तो है ही उसमें। आपकी जस्ट आपकी सिरिंज आप लेते हो कोई, उसके अंदर गैस है, आप एयर है उसके अंदर, आप उसको प्रेस करते हो सिरिंज को तो भी वो गैस कंप्रेस होती है, नीचे आप प्रेस कर पाते हो। सो मीन्स गैसेस दे कैन बी कंप्रेस्ड। तो मतलब पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस अवेलेबल है, तभी तो हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। अगर आप सोचो, आप एक बीकर आपने लिया, एक कोई भी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें छोटे छोटे आपने पार्टिकल्स अगर डाल दिए, आप छोटे छोटे स्टोन्स डालोगे तो आप देखोगे थोड़ी स्पेस बीच में बची रहती है। अब आप पानी डालोगे तो वो पानी, थोड़ा पानी जो होगा वो तो उन स्पेसेस के बीच में चला जाएगा। ऐसे ही गैसेस का, तो इससे हमें पता चलता है कि बीच में कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ये सब चीज़ें क्या है, ये इन पे बेस्ड जब एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे साइंटिस्ट ने, तो उससे हमें पता चला कि मैटर का पार्टिकल नेचर है। जब डिसोल्यूशन भी एक इस टाइप के भी जब एक्सपेरिमेंट किए तो भी पता चला, लाइक शुगर को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर पूरी डिसॉल्व हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? वो भी तो शुगर का जो क्रिस्टल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो उसमें वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं यूनिफॉर्मली। इनसे भी पता चला। तो इन चीज़ों से हमें एविडेंसेस मिले कि यस, मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। किन किन चीज़ों से हमें मिला? डिफ्यूजन से, ब्राउनियन मोशन से, वी कैन कंप्रेस गैसेस, तो भी डिसोल्यूशन से। इन 4 टाइप के एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि हमें एविडेंसेस मिल गए कि मैटर का पार्टिकल नेचर है। ओके, अब हम क्या एक्टिविटी करें कि हम बता सकें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। अभी ऊपर हमने करा, तो उनमें से ही एक एक्टिविटी हम ट्राई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बीकर, बीकर में हमने डाला पानी। ओके, ये लेवल है, सपोज हमने स्केल में देख लिया ये वाला लेवल है। अब हमने क्या करा, 2 ग्राम शुगर डाल दी और स्टर करा उसे, खूब अच्छे से हिलाते गए टिल ऑल द शुगर गेट डिसॉल्व। अब फिर से हमने रीडिंग देखी पानी की, अरे ये तो रीडिंग अभी भी वही है जो इनिशियली पहले थी बिफोर एडिंग शुगर। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ऑब्जर्व किया कि मार्क तो अभी भी सेम ही है यार, भाई जो पहले था वही अभी भी है। मतलब क्या हुआ, हमने तो शुगर ऐड करी थी, फिर वो कहाँ गई शुगर? शुगर डिसॉल्व हो गई है आपके पानी में। पानी के, वाटर के जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, आपके जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस थी, उसी में शुगर के पार्टिकल्स जाके बैठ गए। बात ये हुई है, और आपका वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो पहले जो मार्क था पानी का, वाटर का बीकर में, अब भी सेम ही मार्क है, एंड वॉल्यूम, इसका मतलब आपका इंक्रीज हुआ ही नहीं।
That means when we dissolve sugar in water, particles of sugar, they get into the spaces between particles of water. That means each sugar crystal must also be made up of millions of small particles. Okay. अच्छा, अब now we know that okay ये particles का तो है. Now how small are these particles? अब इसके लिए again we can do one activity just to understand the things. We'll take up water in a beaker. ये ले लिया हमने. Okay. 100 ml water ले लिया. कुछ पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स ले लिया. पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है पर्पल कलर का, आपका कलर देता है. ओके. अब हमने ये इसमें डाल दिया तो इसका कलर हो गया पर्पल. अब इसमें से हमने क्या करा, 10 ml हमने ले लिया. ये जो सॉल्यूशन हमने इसमें फ्यू क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैग्नेट के, ये सॉल्यूशन जो बना पर्पल कलर का, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया. ठीक है. और इसको 90 ml क्लियर वाटर में हमने ये 10 ml मिला दिया. तो टोटल हमारा 100 ml का फिर से हो गया. ये हमने मिला दिया. अब फिर ये जो सॉल्यूशन बना इसमें से हमने फिर से 10 ml लिया और फिर 90 ml वाटर में हमने फिर ये 10 ml मिला दिया तो हमें ये सॉल्यूशन मिला. ओके. फिर से हमने 10 ml लिया. अगेन दिस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. अब हर बार क्या देख रहे हैं हम कि पर्पल की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है. पर्पल कलर की इंटेंसिटी लाइट होता जा रहा है. यहाँ डार्केस्ट है, देन इट बिकेम डार्कर, देन लेस डार्क एंड देन मिनिमल डार्क. तो इंटेंसिटी पर्पल कलर की रिड्यूस होती जा रही है बट फिर भी वाटर जो है वो आपका कलर हो रहा है. करेक्ट. तो इससे क्या पता चला, दैट पोटेशियम परमैग्नेट दैट हैज millions of tiny particles which keep on dividing on each dilution. On each and every dilution, these particles they are keep on dividing. That means matter is made up of tiny particles. Okay, millions of tiny particles. अब हम बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसकी. मैटर की तो हमने देख ली. मैटर की ऊपर हमने करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स. That it has space, mass, it has inertia. Correct? We have done it. Gets attracted towards gravity. हमने ये सब करी थी. अब हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स जो है मैटर के उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. तो क्या होगी, particles of matter are very very small. How we can say that? Because we cannot see those particles. We can see the matter but particles, small particles we cannot see by naked eye. We need microscope to see that. Okay. Particles of matter, they have spaces between them. That also is there. They have spaces. And this space is known as interparticle space. यही तो spaces है. इन spaces की वजह से ही तो दूसरे particle, जैसे हमने पानी लिया था वाटर में हमने शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल हमने डाले तो हमने देखा और स्टर करा तो सारा शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई पानी में, वाटर में. तो हुआ क्या, बेसिकली आपके शुगर का क्रिस्टल फर्दर डिवाइड हुआ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी उनमें जाके वो फिट हो गया. करेक्ट. तो ये बात हुई थी. तो इससे हमें पता चला दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अच्छा. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. दे आर मूविंग. हाउ वी नो दैट? अभी हमने करा था ऊपर ब्राउनियन मोशन. दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ zigzag मोशन. और वो हमने पॉलन ग्रेन्स को जब वाटर में डाला एंड वी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें पता चला. अच्छा, व्हेन दे आर मूविंग
So that means they possess kinetic energy. They possess kinetic energy because they are constantly moving. Okay. Then these particles of matter, they attract each other, and this is known as interparticle force. So these are the characteristics, important characteristics of particles of matter. Okay. अब ये हम कर रहे थे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर. अच्छा, अब मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर क्या डिस्क्राइब करता है कि मैटर जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली? मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, है ना. अब हम बोलते हैं ना वाटर का मॉलिक्यूल, you all know that is H2O. This is one molecule of water. CO2, that is also a molecule of carbon dioxide. This is water molecule, this is carbon dioxide molecule. So this is, we can describe molecular nature of matter. क्या है molecular nature? That molecules, we can say matter is composed of molecules. एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स. अब यहाँ पे कौन से एटम है वाटर में? हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम. दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, they combine to form water molecule. Similarly, 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen, they combine to form carbon dioxide molecule. अब मॉलिक्यूल्स भी हैं. अब जैसे हम वाटर बीकर में ले रहे हैं तो क्या है उसमें एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है वाटर का, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है. वाटर मॉलिक्यूल्स पास 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 दिया. अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा, which is known as intermolecular forces. This is known as intermolecular forces. अब ये कैसा है अट्रैक्शन? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो डिटरमाइन करता है हमारा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो उनमें कैसा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, वही डिटरमाइन करेगा सॉलिड्स, लिक्विड या गैसेस. अभी हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें अगर तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो वील से दैट इट इज सॉलिड. अगर बहुत ही कम है, वीक है, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो हम कहेंगे गैस. ओके, सो उसमें भी ये हेल्प करता है, हमें पता चलता है. अच्छा, अब एक चीज होती है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ही हमें पता चलता है सॉल्युबिलिटी कितनी होगी एंड सरफेस टेंशन क्या है. सरफेस टेंशन, solubility we know how much solute can be dissolved in this fixed quantity of you can say this water. तो इसकी कितनी solubility है. अगर मैं ये बीकर में वाटर ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, तो ये 10 ml में कितना सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी. ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे ही डिपेंड करती है. सरफेस टेंशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज सरफेस टेंशन? बेसिकली सरफेस टेंशन इज डिपेंडेंट ऑन कोहेसिव फोर्सेस. There are 2 types of forces which are cohesive, we can say, and adhesive. Cohesive and adhesive forces. अब कैसे? सपोज ये मेरे पास एक बीकर है. ओके, दिस इज द बीकर एंड वी हैव वाटर इन इट. ठीक है, ये वाटर है मेरे पास, एक बीकर, और उसमें मैंने वाटर ले लिया. अब पता है होता क्या है, ये जो अंदर मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मेरे हैं, इनका आपस में जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगता है, दिस इज कोहेसिव इन नेचर. सो कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. सेम टाइप है, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो सेम टाइप के ही रहेंगे ना, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज योर कोहेसिव फोर्स. एंड अब ये बीकर है, बीकर ग्लास का है, तो ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज एडहेसिव फोर्स. सो कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स and adhesive force is between different type of molecules. This is one important thing. अब हम कर रहे थे surface tension. Surface tension जो है, that is dependent on this cohesive forces. Means we have to consider only water molecules के बीच में कैसा force है, कितना force है. अब आप देखोगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे नीचे तक वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. अब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में, ये वाला जो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूँ, तो इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी सब जगह इंटरेक्शन होगा. जो भी इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं सबके साथ, ये बीच में है. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की, अब उनको सिर्फ नीचे की तरफ ही पुल मिलता है, ऊपर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा. ऊपर तो एयर आ गई, वाटर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं. और कोहेसिव फोर्स, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में ही लगता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब कोहेसिव फोर्स लग रहा है आपका तो टॉप लेयर पे, ऊपर और तो एयर की लेयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर है नहीं, तो नीचे की तरफ सिर्फ आपका पुल लग रहा है. नीचे के मॉलिक्यूल्स टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाते हैं. क्या है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, नीचे आ जाते हैं. This only is known as surface tension. Okay, so understood. तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर. अब उसमें हमने करा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मैंने बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 टाइप के हो सकते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव. अब कोहेसिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्स. अब वाटर किस में डाला है मैंने, बीकर में, तो बीकर किसका है, ग्लास का, तो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा. वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक. पूरा डिटेल में आपका 11th में इसकी केमिस्ट्री में पूरा डिटेल होगा, और फिजिक्स में भी यूज होता है आपका. फिजिक्स में भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, पर अभी नहीं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा 11th में, अभी नहीं करेंगे. अभी जस्ट बेसिक पॉइंट, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, दे आर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मींस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं. 2 टाइप के होते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव. कोहेसिव जो होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे एडहेसिव कहते हैं. जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें बीकर, बीकर में वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोहेसिव फोर्स है, और ग्लास मॉलिक्यूल जो बीकर का है, ग्लास मॉलिक्यूल विथ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज एडहेसिव फोर्स. ओके, इसकी वजह से ही आपके कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन होता है. Surface tension is only because of cohesive forces, not because of adhesive forces. So the surface tension is the phenomena which occurs only due to cohesive force. Surface tension. Okay. ठीक है, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमने कर लिया कि हमें बॉइलिंग एंड बॉइल्टिंग पॉइंट्स हमें उसके पता चलते हैं,
स्टेट्स ऑफ मैटर भी अलग अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम सब्सटेंसेस की मैटर की सॉल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन बता सकते हैं। हमने अभी तक कर लिया मैटर की प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज, हमने कर लिया पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने ये सब कर लिया। ओके, अब हम करेंगे थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू मैटर। करेक्ट? व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू मैटर? फर्स्ट वी हैव एटॉमिक थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एटॉमिक थ्योरी, atomic theory, according to atomic theory, all matter that is made up of atoms, and atoms only combine to form molecules. छोटे छोटे atoms होते हैं, they combine to form a molecule. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वाटर है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल। अब ये किसका बना हुआ है, कौन से एटम्स का? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर दी एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म दिस वाटर मॉलिक्यूल। Correct? Correct. Okay. So all matter that is made up of atoms, and atoms combine to form molecules. This is atomic theory. Now we have kinetic theory of matter also. अब ये क्या कहती है भाई, kinetic theory क्या कहती है? That all matter that is made up of tiny particles. We are talking about only particles here. So all matter is made up of tiny particles. These particles, they are in continuous and random motion, the zigzag motion, Brownian movement. Okay. When they are moving, because the particles they are moving, they possess kinetic energy. And when we raise the temperature, what happens? Kinetic energy also increases with temperature. Okay. And we also know there are forces of attraction between the particles, that is interparticle force that we call. Now when the particles they are moving, so what will happen? They will collide also with one another. They are moving continuously, they are in motion, so they will collide also with one another. So all collision between particles of matter are perfectly elastic. Now this is again a new term for you. What do you mean by elastic collision? The collision is elastic, means before collision whatever the kinetic energy was there, after collision also same kinetic energy will be there. There is no loss of kinetic energy. The kinetic energy is conserved before and after collision. Those collisions are called elastic collisions. We'll do these type of collisions in our physics chapter in detail, but for now you just understand that those collisions, because particles are continuously moving, then they will collide also with one another, and these collisions which are happening, they are perfectly elastic, means there is no loss of energy before and after collision. Now just think, what would have happened to the gas if molecular collisions were not elastic? अगर ये इलास्टिक ना होते collisions तो क्या होता, तो क्या हो जाता? तो हर कोलिजन पे there would have been loss of energy. बिल्कुल there would have been loss of energy. अब ये एनर्जी लॉस होती तो क्या होता? Molecules would have slowed down and ultimately they would have settled down in the vessel. और प्रेशर भी जीरो रिड्यूस हो जाता तो क्या होता? कुछ भी नहीं, नथिंग वुड हैव एग्जिस्ट, क्योंकि पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं। अब वो हैफिजेटली मूव कर रहे हैं तो दे विल कोलाइड ऑल्सो, कोलाइड करेंगे बार बार, तो उनकी एनर्जी अगर लूज होती जाएगी, अगर कोलिजन इलास्टिक ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वो तो सेटल हो जाएंगे वेसल में और प्रेशर बचेगा ही नहीं किसी भी चीज का, वो जीरो हो जाएगा प्रेशर। These are the main, we can say, postulates of kinetic theory. Okay, so what all we have done today? We have done what are just the introduction to this new chemistry chapter, first chapter.
particles, that all matter, that is made up of particles. Matter की characteristics, particles of matter की characteristics, then particle nature of matter, molecular nature of matter we have done. Then what are the different theories which are related to matter, that is atomic theory and kinetic theory. We have covered this much. Hope you understand some new terms that I have used. The cohesive forces, the adhesive forces, because of cohesive forces surface tension comes into effect, that also we have done. We have done diffusion, some new things that I am talking about. What is diffusion? Particles, they move from higher concentration to lower concentration, that is diffusion. These are the new terms. So today we will stop here only. Tomorrow again we will continue further. Hope you understand what I am telling you, what I am trying to explain. So if you like this session, please like, share and subscribe to our YouTube channel, which is Prakash Academy, for more such videos. And please, if you have any doubts regarding anything, just comment us. We'll reply back to you. Okay. Chalo, see you. Take care and have a great day.